यूनिवर्सिटी में सक्रिय थे और मैं लखनऊ दैनिक जागरण में एक छोटा सा कर्मचारी था। तो तब के हम लोगों के संबंध है, ईश्वर ने इनको ऊंचा कर दिया, अच्छा कर दिया और हमें छोटा कर दिया। और हम लोग जब मिलते थे, आपको याद होगा पासपोर्ट वाले आवास में, तो उस समय वो दूसरा दौर था, वो दूसरे दिन हुआ करते थे। और हम लोग दोपहर में एक अपनी जो डेट लिखी थी उससे एक हल्का सा ब्रेक लेकर के और आपके पास पासपोर्ट में आते थे। तो दोपहर का जो लंच ब्रेक होता था और आपकी जो त्वरा थी और आपका जो व्यवहार कौशल था और वो जो हमेशा दाल भात और आलू का जो चोखा मिलता था, तो वो उसका जो फिर है वो आज भी मेरे ऊपर बरकरार है और वो मुझे कभी भूल नहीं सकता। और मैं कभी कभी इनकी थोड़ा सा इनका आनंद मंगल ले लिया करता था कि मुझे जब भी इनसे कभी बात करनी होती थी तो मुझे इनको ऐसे देखना होता। तो मैं इनसे कहता था कि आप मुझे हो, भगवान ने आपको शारीरिक ऊंचाई दी है, एक दिन आपको ईश्वर बहुत ऊंचाई देगा और तभी मैं आपसे ऐसे ही बात किया। तो वो पता नहीं कौन सा सुखद संयोग था कि मैं इनको भाई कहता था और ये हमको भैया कहते थे और वो संबोधन आज भी बरकरार है। भारतीय राजनीति की, भारतीय लोकतंत्र की, यद्यपि दुनिया के तमाम देश हैं जिनमें अलग अलग तरह के लोकतंत्र हैं, किंतु भारतीय लोकतंत्र की ये विशेषता है और वो विशेषता लगातार प्रगाढ़ होती जा रही है कि लखनऊ के बगल में हरदोई का एक जिला मल्लावा नाम का छोटा सा गांव, और वहां पर एक सामान्य पृष्ठभूमि, एक बहुत सामान्य बैकग्राउंड से आने वाला एक व्यक्ति जो लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से बहुत जमीनी स्तर से शुरुआत करते थे और वो अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम, अपनी व्यवहार कुशलता, अपनी मिलनसारता और एक एक व्यक्ति के प्रति सहयोग और उसकी मदद करने के लिए जो इनकी तत्परता है, आज उसने इनको देश के सबसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री पद पर आसीन किया है। इसमें किसी का कोई आशीर्वाद नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरी अपनी व्यक्तिगत धारणा है। राजनीति में चाटुकारिता का भी पुरस्कार नहीं। Morning to one and all present here. We have all gathered here today at Dainik Jagran Education Forum 2022 to address and discuss a very relevant subject, which is the National Education Policy, termed popularly as NEP 2020. And it is indeed a matter of pride to have Honorable Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Shri Brijesh Pathak ji, as our esteemed Chief Guest for the occasion. I feel extremely elated to welcome you, sir. Your gracious presence is indeed a source of motivation for all of us. Your contribution to the society and Uttar Pradesh in particular is indeed noteworthy. I once again welcome you wholeheartedly to this forum, sir. I also feel overjoyed to welcome our honorable members of parliament, Shri Mahesh Sharma ji, Shri Surinder Nagar ji, and Shri Jagnnath Pal ji. Their immense experience and foresightedness has benefited the society largely. We are happy to have amongst us Noida MLA. Sorry, he is not with us. MLA Jeva Shri Dhirendra Singh ji, MLA Dadri Shri Tejpal Nagar ji, MLC Shri Narendra Singh Bhati ji, MLC Shri Chand Sharma ji, BJP District President Shri Vijay Bhati ji, Noida Metropolitan President Shri Manoj Gupta ji, Dr. Ramkishore Agrawal ji, Chairman RP Group of Institutions, Greater Noida and Mathura, Shri Vishnu Tripathi ji, Shri Vipin Khatwani ji, Shri Nitendra Srivastav ji, Shri Ravi Pandey ji, Shri Manish Tiwari ji.
Their presence definitely adds more joy and meaning to this intellectual feast. I extend my greetings to this august gathering, and I'm sure this forum will give us new insights into universities like Takshila and Nalanda, trained intellectual kilns. Let me remind you that it took 3 months to burn the 19 million books preserved in the library of Nalanda. With a blend of modern tools is a foundation of NEP 2020, which aims at promoting education rooted in Indian ethos, removing language barriers, and emphasizing on conceptual learning rather than rote learning. When our ancient system of education was so powerful, then why do we require transformation today? It is because our ancient philosophy of education was changed by the British in the 19th century, as they wanted a system of education which could produce more clerks and not entrepreneurs. This system discouraged questioning and research. With NEP 2020, our students will regain the courage to ask questions, and the teachers will be well trained to answer them. We are moving from being dependent to becoming independent, and this new policy is the basis of such a transformation. It was the vision of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, to revive our rich cultural practices, which has fructified as NEP 2020. Education system needs to attune itself to the technological changes, and with the groundbreaking feature of NEP 2020, like blending vocational courses with technical courses, banking of credits, a robust teacher training and mentoring system, preserving our rich legacy of languages, and allocating 6% of the GDP to the education sector will surely bring about a positive impact in the education system. I would like to conclude hoping to see an India where students from abroad will have to wait in a queue to take admissions in Indian schools and universities. Let's gift a legacy of true knowledge to our children. I once again, on behalf of the entire GL Bajaj family, offers my salutations to Honorable Deputy Chief Minister Shri Brijesh Pathak ji for accepting to grace the occasion, to Dainik Jagran for their cooperation, and to the entire galaxy of intellectuals for their presence here today. Thank you and have a good day. दैनिक जागरण एजुकेशन फोरम के इस कार्यक्रम में आज के हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा विभाग के मंत्री, हमारे भाई जिनके साथ मुझे पार्लियामेंट में काम करने का अवसर मिला, ऐसे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी, मंच पर उपस्थित इस क्षेत्र के सम्मानित पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद डॉक्टर महेश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित विष्णु जी, मंच पर उपस्थित जेवर के सम्मानित विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, विधान परिषद के हमारे सम्मानित सदस्य श्रीचंद जी, मंच पर उपस्थित दादरी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित विधायक तेजपाल नागर जी, मंच पर उपस्थित सदस्य विधान परिषद नरेंद्र भाटी जी, मंच पर उपस्थित हमारे सबके सीनियर जिनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लंबे समय से पार्लियामेंट विधान परिषद में जो 8वीं बार वो विधान परिषद, विधानसभा और लोकसभा के सदस्य ऐसे आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, पंकज अग्रवाल जी हमारे साथी, हमारे जिले के दोनों अध्यक्ष विजय जी, मनोज जी, योगेंद्र जी, मनोज त्यागी जी, यहाँ धर्मेंद्र चंदेल जी, उपस्थित सभी महानुभाव, छात्र छात्राओं, मैं सबसे पहले इस गौतम बुद्ध नगर की भूमि पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
आज का ये कार्यक्रम एजुकेशन पॉलिसी जो 2022 है उसको लेकर है। बहुत लंबे समय से इस देश में शिक्षा के क्षेत्र में बदलावों की हमेशा चर्चा होती रही और लंबे समय से एक ही शिक्षा पद्धति, एक ही शिक्षा का जो पैटर्न था उसको हम लोग फॉलो करते रहे। चाहे हमारे अगर ग्रैंडफादर से लेकर आज तक की अगर बात करें, इस एजुकेशन पॉलिसी से पहले की अगर हम बात करें तो एक ही तरह की शिक्षा पद्धति को हम फॉलो कर रहे थे और दुनिया में जिस तरीके के बदलाव आ रहे थे उन बदलावों के लिए हमारी शिक्षा पद्धति जो थी वो तैयार नहीं। 2014 में इस देश में परिवर्तन हुआ और इस देश की जनता ने देश की कमान दुनिया के सबसे 2000 जब हम सरकार में आएंगे तो निश्चित रूप से हम एक नई शिक्षा पॉलिसी लेकर आएंगे, जो नई शिक्षा नीति लेकर हमारी सरकार आएगी। ये घोषणा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में की और कस्तूरी राजन जी के नेतृत्व में कमेटी बनी और उस कमेटी ने जितने भी उसके स्टेक होल्डर्स थे उन स्टेक होल्डर्स के साथ लंबे समय चर्चा की। पूरे देश में स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करने के बाद 2022 में नई शिक्षा नीति को लेकर भारत सरकार आई, जिसे हम एजुकेशन पॉलिसी 2022 कहते हैं। और इस शिक्षा नीति में अगर खास तौर से देखें तो 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। जो हमारा 10+2 का हमारा पैटर्न है उसको बदलने का काम इस शिक्षा नीति में किया गया है। अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 का पैटर्न अब शिक्षा नीति में होगा। यह शिक्षा नीति में नया बदलाव किया गया। यह शिक्षा नीति अगर इसकी बात करें तो जो हमारा 4 स्टेज की अब शिक्षा नीति होगी, फाउंडेशन स्टेज होगा, सेकंड स्टेज होगी, मिडिल स्टेज होगी और सेकेंडरी स्टेज होगी। 4 स्टेज में हमारी शिक्षा जो होगी वो हमारे बच्चों को मिलेगी। और खासतौर से इसमें जो क्लास 6 के बच्चे हैं हमारे, उनको व्यावसायिक शिक्षण है उसकी भी एक्सेस होगी। जो हमारे स्कूल हैं उनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा पूरे देश में और उसके साथ साथ जो हमारे बच्चे हैं, जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं, उनको अपनी मातृभाषा में शिक्षा ले सकेंगे। क्योंकि बच्चा अगर आप देखो दूसरी भाषा में अगर वो शिक्षा लेता है तो अच्छी तरीके से। संक्षेप में अपनी बात रखेंगे डॉक्टर महेश शर्मा जी। मेरी कर्म भूमि की माटी नोएडा गौतम बुद्ध नगर क्षेत्र, जहां मुझे 39 वर्षों से रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस माटी में आदरणीय रामकिशोर अग्रवाल जी, भाई पंकज जी, कार्तिक जी और रामकिशोर जी की खासतौर पर इस प्रेरणा ने एक सुंदर शिक्षण संस्थान स्थापित किया। उसके प्रांगण में आज मुझे बोलने का मौका दिया है। उस शिक्षा नीति पर जिसका मंत्रिमंडलीय सलाहकार समिति का सदस्य होने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं नमन करता हूं उपस्थित विद्वज्जन, मातृशक्ति और बड़ी संख्या में उपस्थित प्रिय छात्रों, पत्रकार, छायाकार बंधुओं। आज एक पीढ़ी की इतिहास हमने देखा है। 1942 से शुरू हुआ ये दैनिक जागरण समूह जो फिल्म के माध्यम से हमने देखा और आज विश्व का सबसे बड़ा और सबसे प्रामाणिक दैनिक पत्र बन गया है। ये हम सब के लिए, भारत के लिए भी गौरव की बात है कि हम आज उस पत्र समूह के सानिध्य में आज एक ऐसी राष्ट्रीय नीति पर चर्चा करेंगे और दिन भर में उससे चर्चा से जो मंथन अमृत प्राप्त होगा वह कहीं ना कहीं हम सबके लिए प्रेरक होगा। धन्यवाद श्री विष्णु त्रिपाठी जी, आदरणीय नितेश श्रीवास्तव जी, तन्मय अंजन जी और सभी भाई धर्मेंद्र चंदेल जी और सभी जागरण समूह के लोगों को मैं नमन करता हूं। आज मंच पर उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व, प्रिय दोस्त, प्रिय भाई, प्रिय साथी के रूप में जिन्होंने अब ये छोटी सी फिल्म प्यारे बच्चों ने बनाई कि किस तरह लखनऊ की राजनीति से शुरू कर अपना जीवन एक सामान्य परिवार के साथ और पारिवारिक भाव के साथ जिन्होंने अपना जीवन जिया
और आज मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में, विधायक के रूप में और आज शिखर की ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा, शिक्षा और चिकित्सा से संबंधित सभी विषयों के प्रभारी मंत्री के रूप में मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उनकी कार्यशैली की वानगी, जब मैं आज से 7 दिन पहले उनके साथ गाड़ी में बैठा था तो गाड़ी में चलते चलते वो किसी से बात कर रहे थे। मैंने पूछा ये बात किससे कर रहे हैं, तो पता चला किसी गोरखपुर क्षेत्र के किसी अस्पताल के किसी मरीज से फोन मिला दिया था कि मैं आपका स्वास्थ्य विभाग का बड़ा बाबू बोल रहा हूं। तो उसने बोला कौन बोल रहे हो, सामने वाला बोला था। बोला आप फला राम बाबू सिंह रोगी आप भर्ती हो ना? बोले हाँ। बोले मैं यहाँ का स्वास्थ्य विभाग का प्रभारी हूँ। ये नहीं कहा कि मैं इनका मंत्री हूँ। कहिए कैसा इलाज चल रहा है, डॉक्टर आते हैं कि नहीं आते हैं? और 4 साल चलते चलते इन्होंने करीबन 4-5 रोगियों से प्रदेश के कोने कोने में उनसे बात करी, उनकी दर्द जाना। मुझे पूरा विश्वास है जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है, विकास के रास्ते पर हम सब लोग आगे चलेंगे। मेरे राजनीतिक सहयोगी और जिनसे मैं प्रेरणा लेता हूं, आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, वास्तव में राजनीति का गुण अगर सीखे तो उनसे सीख सकते हैं। मेरे साथी राजनीति के रूप में जो मुझसे यहाँ के मूल निवासी भी रहे हैं और जिन्होंने राजनीति से इस क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया है, आदरणीय भाई सुरेंद्र नागर जी, आपको भी खुशी होती होगी जब राज्यसभा के सभापति की कुर्सी पर उन्हें बैठा देखते होंगे। आदरणीय नरेंद्र भाटी जी, आदरणीय तेजपाल नागर जी, शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अपने शिक्षक प्रतिनिधि के रूप अपनी पहचान बनाई है, भाई श्रीचंद शर्मा जी, जेवर क्षेत्र के विधायक भाई धीरेन्द्र सिंह जी, और इस संस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के प्रेरणा स्रोत आदरणीय रामकिशोर अग्रवाल जी, पंकज जी। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सानिध्य में मुझे 4 मंत्रालयों में स्वतंत्र प्रभार मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। ये भारत की माटी है। भारत विश्व के लिए शिक्षा का केंद्र भारत था। हम गौरवशाली हैं कि भारत में तक्षशिला थी, भारत में नालंदा था, गुजरात की माटी में जलाबी जैसे शिक्षण संस्थान थे और काशी विद्यापीठ थी। इसी शिक्षा की माटी में विश्व के कोने से लोग स्कॉलर्स पढ़ने यहां आते थे। यही वह भारत की भूमि है जहां आर्यभट्ट जैसे, कात्यायन जैसे, पाणिनि जैसे स्कॉलर्स पैदा हुए। हम उन्हें अपना वंशज कहकर, उनके वंशज कहकर गौरवान्वित महसूस करते हैं। यही वो भारत की माटी है जहां की शिक्षा नीति रिगार्डिंग द एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो मैं उस पर नहीं कहने जा रहा हूं। मैं तो केवल स्वागत करने के लिए खड़ा हूं कि आज जब डॉक्टर्स डे है, आज जब पूरे उत्तर प्रदेश में वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ संचारी रोग, चाहे वो जापानी इंसेफ्लाइटिस हो, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से लेकर मलेरिया, फाइरिया, चिकनगुनिया, सारे संचारी रोग का निवारण कर रहे हैं, उसमें दैनिक जागरण की पहल पे, हमारे विष्णु भाई की पहल पे आज जिस तरह से नई शिक्षा नीति 2020 के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं जीएल बजाज की तरफ से, सामने अपनी ऑडियंस की तरफ से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। क्योंकि दैनिक जागरण काफ़ी केवल खबरों से जुड़ा नहीं है, सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ा हुआ है। कभी हम लोग अपने क्षेत्र में जो वाटर बॉडीज हैं, तालाब हैं, सूख रहे हैं, तो दैनिक जागरण कभी अभियान चलाएगी कि वाटर बॉडीज पे कैसे पानी का वाटर कंजर्वेशन हो, कभी इन्वायरमेंट पे हो, कभी कार्बन इमर्शन पे हो, कभी ग्लोबल वार्मिंग पे हो, या बहुत से सामाजिक सरोकार। आज उसी श्रृंखला में इस जीएल बजाज जैसे इस इंस्टीट्यूट के साथ इन्होंने नई शिक्षा नीति पे किया है, जिसपे हमारे सुरेंद्र भाई ने और हमारे महेश शर्मा जी ने पूरे ढंग से कहा है। तो मैं निश्चित तौर से दैनिक जागरण परिवार को और जीएल बजाज परिवार को, दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आदरणीय रामकिशोर अग्रवाल जी और पंकज जी। मैं केवल कह दूं कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट लगी। आई हैव बीन एसोसिएटेड फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट फ्रॉम डे 1। मुझे याद है कि जब गलगोटिया यहाँ 7 साल पहले आ गया था, तो यहाँ पे जब भूमि पूजन होना था तो हमें ले आए थे। आज मुझे सौभाग्य है कि जहाँ एक साधारण कार्यकर्ता ने इसकी शुरुआत किया था, आज वहाँ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मौजूद हैं, तो यकीनन हमारे लिए आई विल द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। और मैं सोचता नहीं था, जब जी पार्क नाली में आए तो हमने कहा कि रामकिशोर भाई आप मथुरा से आए हैं, यहाँ गलगोटिया, KIT, JSS और काफ़ी सबके प्रबंधक लोग थे, हम लोग 7-8 लोग थे, और काफ़ी नींव खोदी गई। हम ही को नीचे कहा कि जाइए 5 ईंटा रखिए। फिर उस दिन
किया, तो हमने सोचा कि आई मस्ट प्रे टू माई गॉड कि एटलीस्ट ऑल दी इंस्टीट्यूशन, प्रीमियर इंस्टीट्यूशन ये आए हैं और मुझी को कहा है कि तो शुभ हो जाए। लेकिन मैं आज उसके बाद एक दिन फिर जब इसका उद्घाटन था उस दिन भी मुझी को बुलाया। तो मैं आज ये कह सकता हूँ, चाहे नई शिक्षा नीति पे हो, कि जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ, कि जिसमें मैं शिलान्यास भूमि पूजन में था, इस ऑडिटोरियम के उद्घाटन पे था और आज उप मुख्यमंत्री जी के साथ नई शिक्षा नीति पे हूँ, तो आई एम 100% श्योर कि नाउ इफ इंडिया इज एस्टिमेटेड 8.7% of the GDP has beat to the China after COVID pandemic, तो मुझे लगता है जो नरेंद्र मोदी जी ने $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा है, ये GL बजाज का आने वाला फ्यूचर यही पूरा करेगा। क्योंकि मैं रास्ते में आ रहा था, मैंने देखा तमाम स्टार्टअप टर्न इनटू 20 करोड़। आई डोंट हैव टाइम, मैं तो केवल ये कहना चाहता हूँ कि मुझे जैसे इसके ग्रो होते हुए खुशी हो रही है, ऐसे आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यूनिवर्सिटी से जिसके साथ मैंने काम किया वो आज प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है, तो दोनों ग्रो कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। समय की कमी है, फिर कभी विस्तार से बात और इनकी टीम ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जन्मदिन के एक दिन पहले से आज ये किसी कार्यक्रम में नहीं जा रहे, हमारे साथ दिन भर रहेंगे। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत मुबारक हो। और अब मैं माननीय GL बजाज द्वारा आयोजित इस भव्य एवं गरिमामय समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे बहुत ही पुराने साथी, दैनिक जागरण के कार्यकारी संपादक आदरणीय विष्णु प्रकाश त्रिपाठी जी, आदरणीय नितिन श्रीवास्तव जी, आदरणीय विपिन भाटवानी जी, आदरणीय मनीष तिवारी जी, आदरणीय आनंद विजय जी, आदरणीय धर्मेंद्र चंदेल जी, जिनका आयोजन को भव्यता प्रदान करने में अपना अतुलनीय योगदान है, ऐसे आदरणीय रामकिशोर अग्रवाल जी, आदरणीय पंकज अग्रवाल जी, हमारे पारिवारिक मित्र आदरणीय महेश शर्मा जी, हमारे साथी आदरणीय सुरेंद्र नागर जी, हमारे पढ़ाई के दिनों के लगातार मुझे अपना आशीर्वचन देने वाले आदरणीय जगदम्बिका पाल जी, माननीय विधायक तेजपाल नागर जी, माननीय विधायक धीरेन्द्र सिंह जी, माननीय MLC श्री शीतल शर्मा जी, आदरणीय MLC श्री नरेंद्र भाटी जी, महानगर के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मनोज गुप्ता जी, जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय विजय भाटी जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों पत्रकार साथियों, सामान्यतः प्रतिदिन 10 से 15 कार्यक्रमों में जाता हूं, लेकिन अपने जीवन में ऐसे कार्यक्रम में मुझे पहली बार आने को मिला जहां मेरे ही जीवन पर एक छोटा सा नाटक देखने को मुझे मिला। कुछ क्षण के लिए मैं बहुत ही द्रवित हो गया था। जब आप अपने जीवन के पिछले पन्ने को पलटते हो तो आपको सच्चाई का आभास होता है कि जीवन के आपाधापी में पता ही नहीं चलता कब कहां कौन पहुंच गया। अगर जीवन के मध्य में हम जब यूनिवर्सिटी में आए, मैं छात्र संघ में विधि प्रतिनिधि के रूप में पहली बार चुना गया 1987 में। 1988 में हमें लगता है विष्णु जी लखनऊ आए होंगे, और तब से लेकर आज तक हमें यह महसूस नहीं हुआ कि विष्णु जी हमारे साथ नहीं है। हर स्थिति में हमारे साथ खड़े रहना। मैं कह सकता हूं अगर मैं आज यहां खड़ा हूं तो अपने दोस्तों शुभचिंतकों की वजह से खड़ा। आदरणीय विष्णु जी लगातार हमें समय समय पर आगाह करते रहे, बताते रहे कैसे आगे काम करना है, क्योंकि हमारे साथ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। सामान्यतः आप देखते होंगे जो बड़े नेता होते हैं उनके पीछे कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड होती है, कुछ बड़े राजनेताओं का हाथ होता है, या कहीं कुछ ऐसा होता है कि उनको आगे आने का अवसर मिलता है। लेकिन हम एक कार्यकर्ता की बात लगातार लगे रहते थे। आदरणीय जगदम्बिका पाल जी की मुझे याद आ रहा है, मैं यूनिवर्सिटी में छात्र संघ अध्यक्ष होता था। पाल साहब बड़े नेता होते थे, बस्ती के विधान परिषद में नेता थे, उनको बुलाते थे तो हम 100-200 लड़के लेके जाते थे, कहीं जुलूस निकालना हो, धरना प्रदर्शन करना हो।
एक बार क्या हुआ, पाल जी का फोन आया मेरे पास कि जल्दी आ जाओ, हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, कोई है नहीं। और राजभवन में 200-300 लड़के लेकर हम लोग गए और भाई साहब मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। तो जो टीम हमारे सामने मंच पर बैठी है, चाहे सुरेंद्र नागर जी हो, चाहे श्रीचंद शर्मा जी हो, चाहे धीरेन्द्र जी हो, चाहे नरेंद्र भाटी जी हो, हम लोगों ने तिल तिल करके यहाँ तक हमारी, जैसे चींटी चलती है ना, चींटी चढ़ तो पहाड़ पे जाती है, लेकिन जब ऊपर पहुंचती तो दिखती है, नीचे से कोई जा ही नहीं पाता। तो हम लोग हर स्टेप को चलते हुए आए, कभी लिफ्ट से चलने का अवसर नहीं मिला। जैसे सांप सीढ़ी का गेम होता है, एक एक खाना आपको चलना है। वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा दैनिक जागरण के इस कार्यक्रम में आकर के। दैनिक जागरण कोई केवल अखबार नहीं है, समाचार पत्र नहीं, मैं बहुत दिनों से फॉलो करता हूं। दैनिक जागरण एक पारिवारिक जीवन में प्रातः काल का एक ऐसा हिस्सा बन गया है कि उसके बगैर अखबार पढ़े शुरुआत दिन की नहीं मानी जाती। ढेर सारे अखबार आप मंगाते हो, लेकिन पहला अखबार कौन सा होता है? अखबार देख लिया, फिर दिन भर अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन एक अखबार होने के नाते केवल समाचार जगत में अपनी पकड़ बनाना, लगभग 20 करोड़ पाठकों को अपने से जोड़ना, मैं भी पाठक हूं, लेकिन 20 करोड़ पाठकों को जोड़ना, पाठक इस पर सही बात है। 20 करोड़ पाठकों को जोड़ना और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी बात को पहुंचाना, ये किसी के बूते की बात है तो जागरण की। और जागरण ने एक और विशेषता हासिल की कि हिंदी का सबसे बड़ा अखबार इस दुनिया में है। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी भारत माता के मस्तक की बिंदी है, और उस हिंदी को अगर जन जन तक पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो दैनिक जागरण ने किया। जैसा कि अभी पाल साहब कह रहे थे कि सामाजिक सरोकारों से हर विधा में, चाहे जल हो, चाहे लोगों को कोरोना काल में मदद करना हो, चाहे ग्रीन इंडिया के लिए काम करना हो, बागवानी लगाना हो, पेड़ पौधे लगाना हो, हर स्तर पर दैनिक जागरण परिवार आगे आया है। कोरोना काल में हमें याद है कि सैकड़ों टन आटा इकट्ठा करके हाकरों को और गरीब लोगों को बांटा जाता था, राशन बांटा जाता था, पका पकाया खाना बांटा जाता था। हम विपरीत परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, लेकिन जागरण ने कभी भी आम जनता का हाथ उस समय में नहीं छोड़ा जब जागरण का प्रकाशन बंद हो गया था, लेकिन इनके हाथ खुले थे गरीबों की सेवा करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए। आज नई शिक्षा नीति पर हम लोग बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पूर्व वक्ताओं ने लगभग पूरी बात नई शिक्षा नीति में क्या है रख दी है, लेकिन फिर भी हम पूरे परिदृश्य पर कुछ बातें आपके समक्ष रखेंगे। भारत जब गुलाम हो गया, गुलामी से पहले हमारे पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा थी। हमारे पास वेद थे, हमारे पास पुराण थे। मुगल आक्रांताओं ने हमारे पर हमले किए और उन्होंने सबसे पहले कहां हमला किया? हमारे साहित्य के केंद्र पर, हमारे शिक्षा के केंद्र पर, हमारी यूनिवर्सिटी को आग लगा दी। तो हमारे पूर्वजों ने क्या किया कि आग लगा दोगे, लेकिन कहा जाता कि सब कुछ चुरा लोगे, शिक्षा को चुरा नहीं सकता। तो हमारे गुरुजनों ने, हमारे आचार्यों ने क्या किया कि अपने सभी शिष्यों से कहा कि सभी वेद पुराणों को आप कंठस्थ कर लो, याद कर लो। तो उन्होंने कहा गुरुदक्षिणा क्या होगी? कल गुरुदक्षिणा यही होगी कि हम तुम्हें याद करा रहे हैं, तुम प्रतिवर्ष कम से कम 10 शिष्यों को याद करा देना। आप सोचिए हमारे पर कितने हमले हुए, हमारी संस्कृत को, हमारी सांस्कृतिक विरासत को मिटाने पर कितने हमले हुए। हजारों वर्ष हमने प्रताड़ना झेली है और फिर भी हमने अपना संस्कृति नहीं बदली। एक तो हिंदुस्तान में राजा हुए थे, इतिहास बताता है कि जब तक वो 10 टन जनेऊ सामने रख नहीं लेते थे आग लगा करके, तब तक भोजन नहीं करते थे। आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा होगा। ऐसे ऐसे हमले, सांस्कृतिक विरासत पर हमले हुए, लेकिन हमने वेद पुराण सबको याद करा दिए। आज हम नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों ने जब देश की शासन सत्ता व्यवस्था संभाल ली, तब उनको लगा शासन चलाने के लिए अधिकारी चाहिए, बाबू चाहिए, चपरासी चाहिए। जमींदार व्यवस्था समाप्त होने लगी थी। तो आईसीएस तो इंग्लैंड से बन करके आएंगे अपनी व्यवस्था के, अपनी शिक्षा से। बाबू इंडिया में बनेंगे, उन्होंने ऐसी शिक्षा नीति डेवलप की। लॉर्ड मैकाले को उन्होंने यहां अध्ययन करने के लिए भेजा।
लॉर्ड मैकाले जब हिंदुस्तान की संस्कृत को, सांस्कृतिक व्यवस्था को देख करके इंग्लैंड गए तो वहां उन्होंने एक बयान दिया। वो इंग्लैंड की संसद में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत पर अगर कब्जा करना है तो वहां की शिक्षा व्यवस्था को आपको बदलना पड़ेगा, नहीं तो कभी आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। उनकी सांस्कृतिक और सांस्कृतिक धरोहर बहुत मजबूत है, वो कभी अपने से अलग नहीं होने वाले, वो कभी आपको स्वीकार करने वाले नहीं। जो अभी हम एजुकेशन पॉलिसी अभी तक जिसका अध्ययन हम कर रहे थे, ये उन्हीं के देन है, लॉर्ड मैकाले के देन। आजादी के बाद कई सरकारें आई गई, दशक बीत गए, लेकिन किसी की तरफ शिक्षा को बदलने के लिए किसी का ध्यान नहीं। मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने नौजवानों की, होनहारों की इस पीड़ा को समझा और हिंदुस्तान के लिए नई शिक्षा नीति लाने का काम। जो शिक्षा व्यवस्था हमारे अनुकूल होगी, जो पुरातन काल से चली आ रही थी, उसको बदल दिया। मातृभाषा, सामान्यतः हम देखते हैं कि सारे लोग इंग्लिश की तरफ दौड़ चले, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री ने तय किया जो बच्चा है मातृभाषा में उसको कक्षा 5 तक की हम शिक्षा देने का काम करें। ऐसे कई बिंदु नई शिक्षा नीति में रखे गए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आज जो सेमिनार दिन भर का है, लगभग 4 सेशन इसमें होने वाले हैं। इन चारों सेशन में विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से जो बातें आएंगी वो नौजवानों के लिए बहुत अच्छा होगी, हमारे विद्यार्थियों के लिए रास्ता दिखाएगी और प्रदेश और देश के विकास में सहायक होगी। मैं जीएल बजाज ग्रुप को, दैनिक जागरण परिवार को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। घड़ी मुझे जवाब दे रही, मुझे हैदराबाद जाना है, फ्लाइट है मेरी, इसलिए मैं उपस्थित सभी जनसमूह का हृदय से आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लेकिन उन मित्रों का, उन भाइयों बहनों का जरूर आभार प्रकट करूंगा जिन्होंने हमारे जीवन पर मुझे छोटा सा जो नाटक दिखाया, कला दिखाया, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी आपका। सीख है कि आपको शिखर पर पहुंचने के लिए किसी लिफ्ट की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मेहनत की आवश्यकता है। तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आपने जो कहा उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। श्री पंकज अग्रवाल, वाइस चेयरमैन जीएल बजाज, स्टेट श्री जगदम्बिका पाल। श्री जगदम्बिका पाल। I request Vice Chairman Sir to felicitate Dr. Mahesh Sharma, MP and Commerce Central Minister. I request Shri Suresh Kaushik ji to felicitate Shri Surendra Nagar, Member of Rajya Sabha. I will now request Mr. Karthik Agarwal, CEO GL Bajaj, to felicitate Mr. Surendra Nagar, Member of Rajya Sabha. I request Karthik Agarwal, CEO Sir, to felicitate Mr. Vishnu Tripathi, Executive Editor, Dainik Jagran. I will now request Dr. Manas Mishra, Director GLB ITM, to felicitate Shri Virender Singh, MLA Jaipur.
will now request Dr. Manju Khatri, Director TNP GL Bajaj, to felicitate Shri Tejpal Nagar, MLA Dadri. I will now request Dr. Shashank Awasthi, Dean Strategy GL Bajaj, to felicitate Shri Narendra Singh Bhati, MLC. Shri Narendra Singh Bhati, MLC. Singh Naruka, Dean Student Welfare GLP ITM, to felicitate Shri Sri Chand Sharma, MLC. I will now request PGM Director Ms. Sapna Rakesh to felicitate Shri Vijay Bhati, BJP Zilla Adhyaksh. Dr. Neeta Awasthi, Director Mathura, to felicitate Shri Manoj Gupta, Noida Mahanagar Adhyaksh. Sir, please. उद्घाटन सत्र के इस विषय पर एक पैनल डिस्कशन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी चुनौतियां हैं।